what I do, I have left all administrative and the experience what I had in Center for Cultural Resource and Training. I do not know whether you have heard the name of Center for Cultural Resource and Training previously, but in brief, should I say that you must have heard the name of NCERT. NCERT is basically concerned with education and curriculum, but CCRT under Ministry of Culture is trying to link education with culture, because we thought that the culture is moving away from education, and we since 1979 we have been trying by training teachers, teacher educators, diet lecturers, principals in the field of education, that how they can link, how they can talk about culture in the classroom. Because every Indian, right from Dr. Tripathi to say the lady who just entered, I think if you say what is the greatness of India, they will say Indian culture, right? And many of us do not, we have some vague idea about what the culture is. लेकिन मैं speak in Hindustani, in English and Hindi mix, Khichdi language, because khichdi is good for digestion. So I speak in Khichdi language, sometimes Hindi, sometimes switch over to English, right? So what is culture? I mean, you will find more than 50,000 definitions of Indian culture. 50,000, I'm saying, it's a small number, but everyone talks about culture in his or her own way, right? So I still do not know how to define culture, but I spent 40 years in working in the area of Indian culture, or trying to link education with culture. Dr. Parag Dubey Saab emphasized that I should talk about training and technical teachers, something like that, right? But in nutshell, I'll say that when we talk about education or training, my only humble submission, बहुत विनम्र निवेदन है कि जो हमारे देश में स्वाध्याय की परंपरा थी उसको मत छोड़िए, right? Self study is must. I mean, I have done B.Ed or I have done M.Ed or I have done B.Tech or M.Tech or this, and I have become professor, right? I'll test Dr. Paliwal here. Where is he? Oh, he's here. He met me yesterday and he said, what do you teach? He said, civil engineering. So I'll ask him what civil engineering is. Later in the day, I'm not increasing his blood pressure right now, but study is more important, right? मैं यदि आपसे इंडियन कल्चर की बात करूं, तो मैम आपका शुभ नाम होना चाहिए था, ये कि परिचय हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कर लूँगा. आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंचल मेहरा है. चंचल मेहरा. मैं मीडिया डिपार्टमेंट. चंचल जी. अच्छा. हिंदुस्तान में बहुत अच्छी परंपरा है सर, कि हर नाम का एक अर्थ होता है. उसके बारे में आपसे अभी थोड़ी देर में बात करूँगा, लेकिन हम सब के जितने नाम हैं उनका एक अर्थ है. हमारे देश में नाम अंडरवुड, बटर कटर, ली, फी ऐसे नाम नहीं होते. सबका नाम है, जैसे चंचल जी ने कहा, मेरा नाम गिरीश है. गिरी मीन्स पर्वत, ईश मीन्स द लॉर्ड हु सिट्स ऑन दैट पर्वत, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शंकर. तो चंचल जी, आपने वर्ड सुना भारतवर्ष, ठीक है? भारत का मतलब तो हम सब जानते हैं, भाव राग ताल के लिए कुछ. वर्ष क्यों लगाते हैं हम देश के आगे? हम पाकिस्तान वर्ष नहीं कहते, हम चीन वर्ष नहीं कहते, हम जापान वर्ष नहीं कहते, भारतवर्ष कहते हैं. क्यों? चलिए चंचल जी से हम लेट्स कीप द क्वेश्चन अफ्लोट इन द ऑडियंस. क्या समझते हैं मतलब वर्ष क्यों लगाया हमारे देश के आगे? Anybody, I mean, without inhibitions, without anything, nobody is going to ridicule anybody, not going to make fun of this. But what will be your answer? What will be your answer, sir? No idea. No idea is the best idea. No idea is the best idea. Okay. Dr. Tripathi ji? वर्ष कभी नहीं सोचा आपने कि वर्ष क्यों लगाइए? मतलब हम कुछ भी चीज़ फालतू की होती है तो कहते हैं हटाओ, लेकिन वर्ष हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं. क्यों? कई सालों से क्या, मुद्दतों से यूज़ कर रहे हैं. वर्ष क्यों लगता है? एनी आइडिया? एक आंसर तो आना चाहिए आपकी तरफ से, फिर मैं शुरू करूँगा. डॉक्टर पराग दुबे जी कहाँ हैं हमारे? हाँ बताइए. मेरे को लगता है तो श्रृंखला से रिलेटेड
think eternal से related होगा. इटर्नल से, एटर्नल, Endless. एंडलेस. हमेशा. Okay, you're slightly in the track, but not fully. Every year has a new beginning. Oh, not only in India, right? Not in Pakistan, not in China, not in Japan, only in India. जी. सर एक हमारा देश एक बहुत पुराना देश है और हाँ. उसके एक काल को हम रेफर करते हैं काल को रेफर करो जो जो चल रहा है, तो आप उस काल को लेंगे 1900 से लेकर या 2014 से लेकर आगे का काल, मोदी जी का काल, या उससे पहले का काल, या क्या, कौन सा काल? हमारा लिटरेचर अभी तक हमें बताता है लिटरेचर बताता है. लिटरेचर क्या बताता है आपको? जो हमारा हिस्ट्री है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, लिटरेचर हमारा इस वर्ल्ड में सबसे पुराना है. कौन सा? वेद. वेद पुराण, तो फिर उस वहाँ से लेके तब तक का इतना लंबा. देखिए, वर्ष का, आप जैसे हम सूर्य निकलता है, हम सूर्य को जल देते हैं, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, मार्तंड नमः, भानु नमः, चित्रभानु नमः. हमारे देश में हर चीज़ के कई नाम हैं, राइट. आप देखें, आँख के लिए मैं कहूँ कि आप बताइए कितने नाम होते हैं, तो आप कहेंगे जी हम चक्षु कहते हैं, हम नयन कहते हैं, हम नयन कहते हैं, लोचन कहते हैं, राजीव लोचन वगैरह वगैरह, लोचन है ना. राम के लिए कहा गया लोचन. नयन शब्द एक है, नयन का, और हर शब्द का एक अर्थ है. चक्षु का एक अर्थ है, नयन का एक अर्थ है, नयन का एक अर्थ है. हमारे विकेट कीपर होते थे नयन मोंगिया, बड़े काफ़ी रहे थे हमारे टाइम में, तो काफ़ी फेमस थे. नयन का अर्थ होता है वह रोशनी जो आपको आगे की ओर ले जाए, संस्कृत में, इसलिए इनको नयन कहा जाता है, राइट. सूर्य के मैंने कहा कई नाम हैं, 37 नाम तो मेरे को याद है, उससे आगे नहीं जानता. वर्ष का अर्थ है, यदि आप डिक्शनरी में देखेंगी, संस्कृत डिक्शनरी में, कि वह भूभाग, ए मास ऑफ लैंड वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, professing different faiths, speaking variety of languages, right? Celebrating different festivals, live peacefully. वह भूखंड जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न भाषाभाषी लोग, विभिन्न पर्वों को मनाने वाले लोग, विभिन्न खान पान के लोग एक साथ मिल के रहते हों. अब हम एक साथ मिल के कितना रहते हैं वो तो दूसरा अर्थ है, लेकिन जब ये डिक्शनरी बनी तो उसमें एक नाम दिया गया वर्ष. इसीलिए ऋषियों मुनियों ने हमारे देश के नाम को कहा भारतवर्ष, राइट. ओके. मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारी स्वाध्याय की परंपरा वो चली गई है, पढ़ते नहीं है. मैं एक पालीवाल जी से प्रश्न पूछता हूँ. पालीवाल जी, आप नाम बताइए. मैं अस्मिता जी, चंचल जी, अस्मिता. पालीवाल साहब, आपका फर्स्ट नेम क्या है? MC पालीवाल मीन्स व्हाट? है महेश. अरे महेश, हाँ, आप हमारे झंडा फहराते हैं. आप झंडा फहराते हैं, राइट. डॉक्टर त्रिपाठी ने फहराया झंडा. झंडे का संवैधानिक नाम क्या है? भारतीय झंडे का जी, राष्ट्रध्वज. मैं संवैधानिक नाम पूछ रहा हूँ. आई नो नोबडी विल बी एबल टू आंसर. पराग जी, आपके पास आता हूँ. एनी आइडिया सर? सचिन तेंदुलकर की तरह छक्का मारिए गेंद स्टेडियम के बाहर. भारतीय झंडे का संवैधानिक नाम. झंडा फहराते हैं, सब कुछ करते हैं. जी जी, ट्राई कलर. क्या नाम है आपका मैम? यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्या नाम बताया? रोली जी, झंडे में कितने रंग हैं? हैं तो चार नहीं, झंडे में कितने रंग हैं? झंडे में कितने रंग हैं? झंडे में कितने रंग हैं? 3. कौन कौन से? सैफरन, ओहो, आप सामने नहीं है, प्रणाम करता हूँ मैं आपको. सैफरन, अच्छा.
ये तो आप साइंस की बात करने लग गई. वाइट रियली. तो सैफरन, वाइट एंड ग्रीन फ्लैग बन जाएगा विद चक्र इन ब्लू कलर. कितने रंग हुए? तो तिरंगा क्यों कहते हैं? फिर भी 4 कलर ही हुए ना. तिरंगा क्यों कहते हैं? मेरा प्रश्न ये है. सिंपल सा प्रश्न है कि आपका बच्चा या आपका भांजा भांजी बेटा बेटी आपके पास आते हैं, कहते हैं मैम मम्मी बताइए कि झंडे में तो 4 रंग, हम तिरंगा क्यों कहते हैं? यू हैव नो आंसर. संविधान बनाते वक्त संविधान निर्माताओं ने तिरंगा शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया. मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में 4 बार गया और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी जिसे बड़ी सुंदर नंदलाल बोस जी ने सजाया हुआ, सिग्नेचर्स किए हुए, उसको देखा मैंने विद स्पेशल परमिशन. और 3 दिन तक देखता रहा, पढ़ता रहा, कहीं भी तिरंगे का नाम नहीं. हमारे झंडे को संविधान में कहा गया है चक्रध्वज, नहीं? और तिरंगा तिरंगा हमने कहना शुरू कर दिया. मेरा कहने का तात्पर्य जो भी अब मैंने आपसे बात की वो ये है कि हमने स्वाध्याय की परंपरा को छोड़ दिया. किताबों में लिखा है तो हम यूज़ कर रहे हैं. ऐसा होता नहीं है, राइट? क्योंकि किताबों में तो लिख दिया किसी ने और उसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम उसको कहते हैं कि हाँ जी ये मैंने किताबों में पढ़ा था. इसलिए इवन NCERT बुक्स में 1960s में उसको तिरंगा कहा गया. फिर देन आई वेंट टू NCERT, मेट द डायरेक्टर, आई सेड कि आप क्यों लिख रहे हैं इसमें तिरंगा? तिरंगा तो है ही नहीं. तब उन्होंने कहा क्या लिखा? मैंने कहा आप चक्रध्वज नहीं लिखते, ध्वज तो लिखिए. फिर उन्होंने ध्वज लिखना शुरू किया 1982 से. तो परंपराएं जो हैं वो ऐसे ही हैं, ठीक है. पढ़ने की बात थी सर, पढ़ने की बात थी कि हम पढ़ें. और मेरे एक मित्र हैं, मुस्लिम हैं, असगर वजाहत. असगर वजाहत वो शख्स है जो जामिया में हिंदी पढ़ाते हैं. और उन्होंने एक ड्रामा लिखा जो शायद भोपाल में कई बार उसका मंचन हुआ. वो जन्मिया ही नहीं जिन्हें लाहौर नहीं देखा. उसका जन्म ही नहीं हुआ जिसने लाहौर नहीं देखा. आपने देखा वो ड्रामा? मैंने ये प्रोवर्ब सुना है सर बार-बार. मुझे मतलब मिले थे सरदार जी थे हाँ कॉन्फ्रेंस में, तो वो ये बोलते जो लाहौर ना देखा तो हाँ, वो जन्मे ही नहीं जिन्हें लाहौर नहीं देखी. असगर वजाहत साहब ने मुझे 1981-82 में ये कहा कि गिरीश आई एम गोइंग टू वाराणसी. और मैं नया नया दिल्ली में जॉब में लगा था, जॉब में ट्रांसफ़र होकर आया था. तो मैं उछल पड़ा अपनी सीट से. मैंने कहा असगर भाई आप चाहे कोई भी हो बट आई विल कम विथ यू टू वाराणसी बिकॉज आई हर्ड सो मच अबाउट सो मैनी थिंग्स अबाउट वाराणसी दैट आई वांटेड टू गो एंड विजिट द सिटी ऑफ वाराणसी. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं. मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, टिकट आपको ख़रीदना पड़ेगा. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलिए मैं ख़रीद लूँगा आपका टिकट. तो असगर भाई, हमारी भाभी जान और मैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में 1982 की गर्मियों में, आजकल तो आप स्टेशन जाते हैं तो देखते हैं यार B3 कहाँ आएगा, A4 कहाँ आएगा, डिस्प्ले बोर्ड में आ जाता. वो ज़माना कुछ नहीं था. स्टेशन थे, भयानक गर्मी, और हम वहाँ खड़े हुए स्टेशन पे. लेकिन मेरे को राहत ये थी कि वो मेरी फर्स्ट जर्नी थी AC कंपार्टमेंट में. उससे पहले मैं 3rd क्लास में ट्रेवल करता था जिसमें मूंगफली के छिलके, गन्ने के छिलके, गंदी है ना बदबू ये सब होती थी. तो ट्रेन आई साहब, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस. हम बड़े एक्साइटेड. सेकंड AC कंपार्टमेंट छुक 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 करते करते हमसे करीब 100-200 मीटर आगे चला गया. तो हमने अपनी अटैची उठाई, हम भी गए क्योंकि रिजर्व कंपार्टमेंट था. जब गए तो जैसे ही मैं स्टेशन डब्बे के अंदर घुसा मुझे लगा वाह, अगर फिरदौस बर रोहे ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त. ये दिल्ली के लाल किले में दीवाने ख़ास में लिखा गया है कि अगर फिरदौस बर रोहे ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त. इस दुनिया में स्वर्ग कहीं पर है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है. मतलब जैसे ही आप स्टेशन से डब्बे के अंदर घुसे, ठंडा ठंडा, साफ साफ, साफ कंबल, साफ चादर. मैंने कहा ये होता है ना स्टाइल ट्रैवल करने का, ऐसे ट्रैवल करना चाहिए. खैर आपको बर्थ, नीचे की बर्थ मेरे को मिली हुई थी. बाय द टाइम मैं वहाँ पहुँचा और सामान रखते और असगर भाई रखते, मैंने देखा मेरी सीट पे सेकंड AC कंपार्टमेंट में एक अंग्रेज लड़का बैठा हुआ, अराउंड 23-24 ईयर्स ओल्ड, 81, राइट.
आज तो किसी फॉरेनर को देख के हम उतनी चाहत हमारे अंदर नहीं होती कि हम बात करें, लेकिन 81, 82 में हम चाहते थे कि जरा अंग्रेज़ से बात कर लें, जरा हम भी हो जाएंगे, राइट। तो मैं गया और मैं बैठा, थोड़ी देर तो बैठा रहा, एंड दैट फॉरेन बॉय वाज रीडिंग ए नॉवल, इनग्रॉस्ड। उसको कोई मतलब नहीं था मैं कब आया, कब मैंने सामान रखा, कब असगर भाई ने सामान रखा होगा। तो मैं थोड़ी देर तो बैठा रहा। उसके बाद मैंने कहा हेलो, वो अपना नॉवल पढ़ रहा। मैंने कहा हेलो, ट्यून बज। मैंने सीट को टैप किया, मैंने कहा हेलो, कहता ओह हेलो, और फिर पढ़ने लग गया नॉवल। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है। तो मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने सीट को टैप किया, मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, कहता आई एम फ्रॉम फ्रांस। गुड, मैंने कहा फ्रांस, कहता यस, एनी प्रॉब्लम, मैंने कहा नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर पढ़ने लगा नॉवल। फिर जब वो पढ़ने लगा तो मैंने कहा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, कोई आंसर नहीं। जब उसने देखा आई एम बम्बार्डिंग हिम विद क्वेश्चंस, उसने अपना नॉवल बंद किया, कहता यस नाउ टेल मी। मैंने कहा हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन, आई मीन हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट, वेयर आर यू। वेल आई हैव स्पेंट two months, आई हैव बीन टू जयपुर, आगरा एंड सर्किट, नाउ आई एम गोइंग टू, आई एम ट्रेवलिंग। तो मैंने कहा यू आर ऑल्सो गोइंग टू वाराणसी, कहता यस वाराणसी। मैंने कहा गुड गुड, क्लासिक। तो कहता व्हाट इज क्लासिक इन दिस। मैंने कहा सी इन इंडिया एवरी वर्ड हैज़ ए मीनिंग, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू वाराणसी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू वाराणसी। कहता वाराणसी हैज़ ए मीनिंग। मैंने कहा यस। कहता मीन्स व्हाट, वाराणसी मीन्स व्हाट, वाराणसी मीन्स व्हाट। पीली शर्ट, आपका नाम धर्मेश, वाराणसी का। बैठे बैठे नहीं, बैठे नहीं, बैठे नहीं। One of the oldest city in the world. नो सर, नो आइडिया। नो आइडिया इज द बेस्ट आइडिया। रोडी जी, स्कूल में पढ़ाया नहीं ठीक से उन्होंने। आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया ठीक से। ये देखिए जी, स्कूल को दोषारोपण कर रहे हैं सर। यू हैव बीन ए टीचर, यू हैव बीन ए टीचर ट्रेनर, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप कह रहे हैं आपको पढ़ाया नहीं गया। Internet says it is luminosity. यार ये जो बंद कर दीजिए, ये इंटरनेट बंद कर दीजिए। देखिए इसे, चंचल जी आप भी इंटरनेट देख रही हैं? अच्छा नहीं देख रही, क्या अर्थ समझिए आप वाराणसी से? मोदी जी की नगरी, राइट? यही कहेंगे वाराणसी का अर्थ मोदी जी की नगरी? नहीं, मोदी से पहले कौन था वहाँ एमपी? धर्मेश, कोई पता? अभी इंटरनेट देखा होगा आपके साथी ने, किसी ने। वाराणसी का अर्थ होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। आई सेड व्हाट इज योर नेम? ही सेड आर्नो। आई सेड आर्नो, वाराणसी मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ओके ओके, बट हैंग ऑन। अब वो उसने, ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी। ही सेड वाराणसी मीन्स लैंड ऑफ टू रिवर्स, बट यू कॉल इट बनारस। बनारस मीन्स व्हाट? बनारस मीन्स व्हाट सर? आपसे पूछ रहा हूँ सर। जी जी हाँ, मुझसे आपसे। बनारस का अर्थ क्या? बहुत अच्छी किताब है द सिटी ऑफ लाइट्स, उसमें दिया हुआ है। नहीं, कोई नो आइडिया? आई सेड आर्नो, बनारस is a name which start emerging in India around 11th century. Before that it was Varanasi, but 11th century when Islam came to this land. आप मानते हैं कोई जना इस्लाम को? यहाँ आप मानते हैं? इनसे आप यदि पूछें, आप भी मानते हैं, इनसे पूछें कि इस्लाम का क्या अर्थ है। मैं यदि त्रिपाठी से पूछूं कि हिंदुइज़्म क्या है, तो त्रिपाठी जी मुझे 3 घंटे लेक्चर देंगे और तब भी नहीं समझा पाएंगे कि हिंदुइज़्म क्या है। जबकि आप इनसे या इनसे पूछें कि इस्लाम क्या है, वो कहेंगे इस्लाम का अर्थ है पीस, इस्लाम का अर्थ है सबमिशन टू गॉड। मैं त्रिपाठी से कहूँ इस्लाम मुझे हिंदुइज़्म समझाइए, वो कहेंगे अच्छा समझाता हूँ, 3 घंटे हो गए। लेकिन इनसे आप पूछेंगे इस्लाम क्या है, ये कहेंगे ये और ये। मतलब कि इस्लाम इज़ डिपेंडेंट और स्टैंडिंग ऑन 5 पिलर्स। दैट इज़ इस्लाम, कि हर आदमी
अल्लाह की नज़र में एक है। सूर्य से सूर्यास्त तक आप 5 बार नमाज अदा करिए, जो भी आप कमाते हैं उसका दान कीजिए, मौका मिले तो हज के लिए जाइए। ये 4 हो गए। और चौथा 5वां क्या है? जिहाद। जिहाद नहीं, जिहाद ज़कात। ज़कात तो हो गया, दान करिए, और रमज़ान के महीने में रोज़े रखिए। ये 5 सिद्धांत हैं जो इसको इस्लाम बनाते हैं, राइट। ये 5 इस्लाम बनाते हैं। लेकिन हुआ ये कि बनारस में जब वो आए तो देयर टंग वॉज नॉट ट्रेन्ड। जैसे जब अंग्रेज पहुँचे साउथ में तो उनका ये क्या है? सर दिस इज़ चेन्नई, दिस इज़ मद्रास। वो चेन्नई का नाम उन्होंने कर दिया मद्रास। व्हाट इज़ दिस? सर दिस इज़ थिरुवनंतपुरम। व्हाट? थिरुवनंतपुरम? नो, त्रिवेंद्रम। वाई? बिकॉज टंग वॉज नॉट ट्रेन्ड टू स्पीक थिरुवनंतपुरम। इसीलिए जब इस्लाम बनारस की तरफ को गया तो उन्होंने वाराणसी का अर्थ किया बनारस। तो मैंने जब उसको आर्मी को ये कहा, हैंग ऑन गिरीश, हैंग ऑन, यू हैव अनदर नेम फॉर द सिटी कॉल्ड काशी। काशी मीन्स व्हाट? काशी मीन्स व्हाट? काशी मीन्स व्हाट? पराग जी, काशी मीन्स व्हाट? एनीबडी, ओपन। अरे यार देखिए, मैं सिर्फ आपको ये झगड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता मुझे कितना टाइम है, लेकिन मैं सिर्फ ये झगड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो किताबों में लिखा है उस पर कृपया विश्वास मत करिए, अपने स्वाध्याय की परंपरा को मत छोड़िए। सिर्फ इतना मेरा अनुरोध है। मैं 40 साल से इंडियन स्कूल टीचर्स, इंडियन स्कूल प्रिंसिपल्स, DEOs, डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन को यही कहता रहा कि दैट स्टडी, स्वाध्याय जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय नहीं होगा तो हम सब लपेटे में आते रहेंगे और जो हमको बहलाता रहेगा हम भटकते रहेंगे। काशी का मैंने अर्थ जब अब ट्रेन ने चलना शुरू किया, आरों ने जब मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय काशी, आई सेड काशी मीन्स काशी, काशी हैज़ नो मीनिंग। आप विश्वास करेंगे कि 24 साल का वो लड़का जो फ्रांस से आया था, ही सेड गिरीश, इन योर संस्कृत लैंग्वेज काश इज़ ए वर्ब, काश मीन्स लाइट, फ्रॉम काश you have प्रकाश, because काशी was a place of learning। वहाँ अध्ययन किया जाता था, अध्ययन स्थली थी, इसलिए उसको काशी कहा गया। और मैं उसके चेहरे को करीब 10 मिनट तक देखता रहा। कहता माई फादर इज़ ए प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस एंड आई लर्न संस्कृत फ्रॉम द एज ऑफ 6। नाउ आई एम गोइंग टू वाराणसी टू स्टडी वेदास। वेदास, वेदों का सुना है आपने? नहीं सुना? शब्द सुना? क्या नाम बताया था? अस्मिता जी, आप हैं? हैं? अंजना जी। वेद का क्या अर्थ होता है? वेद मीन्स व्हाट? एब्सोल्युटली राइट। वेद मीन्स विद धातु से आया टू नॉलेज। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, कौन कौन से सर? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है कि राजमा कैसे बनाते हैं? बेसिक नॉलेज पूछ रहा हूँ आपसे। यदि हम इंडियंस को नहीं मालूम होगा ना तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम जिसकी थाती बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे ऐसा है और हमारा वैसा है, लेकिन हम जानते तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं जानते। यदि सफलता चाहिए तो जान लीजिए मूल कि पानी तो गहरे मिले, ऊपर मिट्टी धूल। बहुत जरूरी है सर। ऋग्वेद इज बेसिकली नेचर वर्शिप, प्रकृति पूजन। उसमें कहा गया बार बार रुद्र, मारुत, अरुण, वरुण, अग्नि। जब आपने प्रकृति से खिलवाड़ किया आप भुगतेंगे और बड़ा बुरा भुगतेंगे, और हम भुगत रहे हैं और भुगतेंगे अभी। देखिए राइट, ऋग्वेद इज बेसिकली ऑलमोस्ट 95% टॉक्स अबाउट नेचर एंड इट्स वर्शिप। राइट, यजुर्वेद टॉक्स अबाउट कि आप यज्ञ कर रहे हैं तो आप संहिताएं कैसे बनाएं, यज्ञ की वेदी कैसे बनाएं, मैथमेटिकल फार्मूलाज जितने हैं। इसलिए आप देखेंगे मैथमेटिक्स वाले जो होते हैं वो ऋग्वेद के
को छोड़ के यजुर्वेद पे ज़्यादा, यजुर्वेद की संहिताओं को यूज़ करते हैं। मैं आपको ज़्यादा मालूम होगा, राइट। संहिताएं यूज़ होती हैं कि यज्ञ की वेदी कैसी बनेगी, कौन से मंत्र होंगे, क्या होंगे। सामवेद बेसिकली टॉक्स अबाउट म्यूज़िक। कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि आई एम सामवेद अमंग द वेदास, राइट। सामवेद में 3 स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऋग्वेद की संहिताओं को सिर्फ 3 स्वरों में गाया जाता है। आज तो हमारे 7 स्वर हो गए, डिफरेंट राग हो गए, लेकिन तब 3 स्वर थे, राइट। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आपने देखा ना, नूदक नूदक, ऐसे करके वेद की ऋचाओं का पाठन किया जाता है, और कोई सुर नहीं था। बाद में ये 7 सुर बने। तो सामवेद हो गया म्यूज़िक, म्यूज़िक में मीटर आए, छंदों में बांधा गया। अथर्ववेद इज a copy of Rigved, plus Atharved is also dealing with यंत्र, तंत्र एंड मंत्र। ठीक है। आपने आपका नाम क्या सर? हाँ, दीपक। दीपक, आपने पंडितों को देखा होगा, पंडित जब आपने श्राद्ध किए, पूजा की, तो पंडित आपसे कहते हैं कि पानी लीजिए और सिप करिए, पानी लीजिए और सिप करिए, और पानी लीजिए और सिप करिए, और पानी लीजिए। क्या मतलब होता है इसका? यार मेरी ऐसे फोटोग्राफ मत देना, मर जाऊंगा मैं कहीं क्या कर रहा है। अच्छा, शुद्धिकरण। क्या 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 कहते हैं उस वक्त हम? केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण। चौथी बार? अच्छा, गोविंद जी आप जाओ, केशव माधव तो हमारे अंदर आ गए जी। हस्तम प्रक्षालम, हाथ धोना। सिर्फ 3 ही हुए ना, फिर इसका मतलब मैं 4 कह रहा हूँ आपसे। ट्यूं 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 ठिश हैं, ऋषिकेशाय नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ यार मेरे को आपसे सुन के। पंडित आपसे ये कहते हैं जब पानी लेते हैं तो ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय स्वाहा नहीं, अथर्ववेदाय स्वाहा। पहले 3 नमः, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ज्ञान मेरे अंदर आया। चूँकि अथर्ववेद डील्स विद यंत्र, तंत्र एंड मंत्र, मैं वो विद्या है, मैं स्वाहा, मतलब स्वधा एंड स्वाहा 2 वाइव्स ऑफ अग्नि। ठीक है। स्वाहा मतलब एक्सेप्ट करो, ओम भूम भूम स्वाहा करते हो ना आप, अग्नि को करते नहीं करते? स्वाहा का क्या मतलब होता है? टू एक्सेप्ट, राइट। तो वो हुआ अर्थ उसका कि एक्सेप्ट किया मैंने, मैं उस ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमको, मुझे लगता है एवरी इंडियन शुड नो अबाउट इट, राइट। मैं एक, चूँकि यहाँ पे कहाँ पर है यार, ये मेरे को करना नहीं आता। इसमें लिखूँगा नॉर्मल जैसे लिखते हैं, इसमें या इसमें, इस पे। ओके पराग जी, हम आपसे शुरू करते हैं। मैं थोड़ा बातचीत में करूँगा बीच में। आप, मैंने सुना मैनेजमेंट पढ़ा, मैं आपसे ह्यूमन मैनेजमेंट की बात करता हूँ, और मेरा आपसे प्रश्न ये है, लिख सकता हूँ 6 most important words in classroom management, in human management। कहा जाता है 6 most important words, क्या होंगे वो? सर यदि क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण वर्ड मेरे लिए तो विद्यार्थी है। विद्यार्थी, स्टूडेंट। आपका उंगली टच हो जाएगी, पीछे पकड़िए। सबसे इम्पोर्टेंट आपके प्यूपिल। प्यूपिल मतलब ये नहीं, प्यूपिल कुछ कोई भी हो सकता है। अच्छा, 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। दूसरा मेरे लिए नहीं 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यूपिल। अच्छा, पहला हो गया विद्यार्थी, दूसरा हो गया ज्ञान,
मैंने माना मुझसे गलती होती है। मैनेजमेंट में 6 ये ह्यूमन मैनेजमेंट कह रहा हूँ, वो आप उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं नहीं जानता। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा? ह्यूमन मैनेजमेंट, Human management, 6 most important words over. I admit that I make mistakes. 5 most important words. आपके जो शॉर्ट हैंड में लिखो। जी सर। आपने तो बहुत अच्छा किया। ह्यूमन मैनेजमेंट, 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। एनीबडी बताइए आपके विचार से 4 सबसे महत्वपूर्ण शब्द। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवेल्युएशन, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ फीडबैक। अपना आंसर जी, अपना आंसर आप दीजिए ना। What you are doing is you are paying respect other person, your student. Student घुसे क्लास में, so what is your opinion? That's sir, that's good film. That's good. Second day, what's your teacher को आराम पसंद? Sir, let's go to sports. Sports. Third day, let's go to this. चौथे दिन प्रिंसिपल आके पकड़ दिया गया। तो क्या हो रहा है आपके स्कूल, कभी इधर जाने, कभी उधर जाने, कभी वहाँ जाने। लेकिन आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट्स का विश्वास जीता। इससे वो समझ जाएंगे कि हमारी वजह से टीचर को डांट मिली, राइट राइट। वो आगे से कभी नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज यू हैव पेड योर रिस्पेक्ट। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। लेट्स डू इट। ये आपने कहा लेट्स गो टू प्लेग्राउंड, लेट्स गो टू दिस, एज यू लाइक। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। One most important word. सॉरी, नमस्ते। Sorry. नमस्ते। आपके विचार से? One most important word. You have been a teacher. You have been a teacher educator. ठीक है? ठीक है, 2 शब्द। Absolutely right, man. Absolutely right. What are you? We. हम करते हैं। अब यदि रोज डॉक्टर त्रिपाठी वंदना जी को, वंदना है आपकी मिसेस, वंदना जी को भी ये कहें कि आई एडमिट दैट आई मेक मिस्टेक्स, कोई कलह होगा? डॉक्टर पराग दुबे जी भौजी भौजी कहते हैं आपकी मिसेस को, क्या कहते हैं? भाभी भौजी। यदि पराग दुबे जी अपनी मिसेस को रोज ये बोले यू डिड फाइन जॉब, आज नमक है राजमा में नहीं है लेकिन यू डिड फाइन जॉब। मेरे घर में झगड़ा हो गया है। अरे झगड़ा नहीं होगा ह्यूमन मैनेजमेंट में सर मेरे घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए। झगड़ा तो अभी होता है क्योंकि आपके बाल नहीं है सर। झगड़ा तो अभी होता है, अभी बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके बाद नहीं होगा। मेरी बीवी तो बोलेगी तुम इतने सबमिसिव हो, मैं तो तुमसे बात आगे बढ़ा ही नहीं सकती। मन में भावे मुंह खिलावे। बात बढ़ाने की ओके बोल दिया तो बात खत्म हो गई। राइट, ये नहीं बता रहा हूँ आपको। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं, उनका बनाया हुआ ये है, एडर ब्लैटन है, उन्होंने ये कहा एंड इट्स बीन यूटिलाइज्ड इन अमेरिका। वो कह रहे हैं काफ़ी कोर्ट के मतलब जो डिवोर्स केसेस हैं वो कम हो गए क्योंकि हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को यही कहते हैं। इसको मिटाएं कैसे? अगला पेज कर, नेक्स्ट पेज कर।
हम आते हैं आपके इस वर्ड पे। किसी ने पढ़ा ये वर्ड या कभी सुना हो? एनी आइडिया अबाउट दिस वर्ड? ये है कैटेकिज्म। कैटेकिज्म मीन्स, ये वर्ड आया क्रिश्चियनिटी से। When parents or teachers give religious education, who is Jesus? What is Lent? What is Christmas? What is this? तो जो धार्मिक शिक्षा जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी जाती है उसको कैटेकिज्म बोलते हैं, राइट? मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि न्यू कैटेकिज्म, उसमें वो वर्ड था जो पराग दुबे जी ने कहा था। ये वर्ड्स इसमें आएंगे बार बार। प्यूपिल या स्टूडेंट जो भी कह लीजिए, यू ऑल हैव बीन a teacher or teacher educator. Since you have pupils, you have teachers, you have principal, right? And this all takes place in education, in technical education, in general education. Not ये बड़े बड़े बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे रहा हूँ आपके लिए, आपकी समझ जानने के लिए कि आप कितना समझेंगे, बिकॉज यू ऑल हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस, इन दीज वर्ड्स। धर्मेश को बताइए, आप क्या करते हैं? लेक्चर। क्या मतलब समझे आप प्यूपिल से? प्यूपिल मतलब स्टूडेंट्स। हु इज अ स्टूडेंट? wants to learn something. Who wants to learn something? You have been a student? At present I am student. Throughout your life, Yes. every moment of life is of learning, of defeat and of positive results. जिंदगी का हर लम्हा कुछ न कुछ सीखने का, कुछ न कुछ पाने का, कुछ न कुछ खोने का, राइट? मेरा इनसे रिलेशनशिप है, लेकिन ये 5 या 7 दिन के रिलेशनशिप में, मतलब इस ट्रिप में मैं इनसे इतना सीखने को साइलेंटली ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज ही साइलेंटली ऑब्जर्व्स मैनी थिंग्स, और ये अपने प्रयोग में लाते हैं तो मैं इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। सो वी ऑल हैव बीन स्टूडेंट। सो हु इज अ स्टूडेंट? A pupil is a child of God, not a slave of conditions. Right? वो परिस्थितियों का मारा हुआ नहीं है कि वो आपके पास आता है, आप लेक्चरर हैं, लेकिन वो एक ईश्वर की कृति है। टीचर कौन होता है? टेक्निकल टीचर, सर कह रहे कि वो पढ़ाते रिटायर हो जाऊँ 3-4 साल में, बस 2.5 साल 2.5 साल, 3-4 कुछ लिखा हुआ 3-4 साल एक्सटेंशन मिलने वाली है आपको। हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए। मुझे वही नहीं कह रहे, मैं यहाँ जब पढ़ता हूँ तो समझ में आ जाता है कुछ। टीचर कौन होता है? टीचर को कैसे डिफाइन करेंगे? डोंट से T स्टैंड फॉर ट्रूथ, E स्टैंड फॉर अर्नेस्टनेस, A स्टैंड फॉर एबिलिटी, C स्टैंड फॉर कैरेक्टर। इस तरह की टीचर फिलोसॉफिकली हु इज अ टीचर? A person who helps us explore, जी, a person who facilitates an exploration of knowledge. who facilitates you. Right? Teacher is a guide, not a God. आपने एज ए लेक्चरर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को सिखा दिया, बता दिया ये मार्ग है, यू हैव शोन देम द विंडो, whether they follow it or not, none of your problems. If wholeheartedly you have taught them, you taught teacher. When you have in an institute, when you have teacher, pupils and students, you have principal. Who is the principal? बॉसेज रहा हूँ कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। Who is the principal? Who manages the affairs of education and organization? Manages the affair, administrator, right? All types. All types. Administrative, managerial, Answer here says academics, principal is a research. master of teaching, not a master of teachers.
प्रिंसिपल इज अ मास्टर ऑफ टीचिंग, नॉट ए मास्टर ऑफ टीचर्स. अपनी कार्य प्रणाली से वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को इंस्पायर like a role model. When you are preparing your student, learning takes place. What is learning? Learning is They are all including me and you. क्या check कर रहे हैं? उन्हें बैठेगा, उन्हें हैं? क्या कह रहे हैं? ये बड़ी टेक्निकल आंसर है कि सर हम लोग ऐसे डेफिनेशन सिखाते हैं. हाँ सिखाते हैं ना. Yeah. कोई दिक्कत है. Modified behavior. Change in the behavior of a person which take place after your teaching is modified behavior को क्या नहीं है जो सिखाया जाता है. constructing new knowledge, new opinions, new perception about life and everything. लर्निंग और गोल के बीच में एक वर्ड और आता है. लर्निंग के बारे में कहा था लर्निंग इज जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन. I've done a B.Ed or M.Ed or M.Tech or B.Tech, finished? No. Learning is a journey, not a destination. But learning takes place through discovery. What is discovery? Finding new things. जी? Finding new things. A different perspective. मैं जब ये पढ़ रहा था ना मैंने मेरी भाई साथ में रखी. मैंने मेरी भाई से पूछा what is discovery? She discovery? Discovery is a channel? मैंने कहा नहीं discovery discovery. Find out the thing which is already exist. आप बहुत मुझे रटी रटाई को दे रही हैं पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फिलोसफी को अब बता. Philosophy. Different perspective. For that we put our efforts and find out something. हमें मिलते क्या है गुजराती में? ये क्या मतलब हुआ डिस्कवरी? इन्वेंट समथिंग. इकोनॉमिक्स कहती है कि आदमी कुछ इन्वेंट नहीं कर सकता. यू आर जस्ट चेंजिंग कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशंस. यू आर सेइंग अभी जैसे इन्होंने कहा पराग जी ने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी. व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी? लक्स न्यू लक्स पहले वाला हुआ करती थी तो मुमताज आई गुड़िया जमान आई उसका प्रियंका चोपड़ा आई तो माधुरी दीक्षित आई और दीपिका पादुकोण आई. लक्स के एडवर्टाइजमेंट न्यू लक्स ऐसा नहीं. डिस्कवरी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है. डिस्कवरी इज क्वेश्चनिंग द आंसर्स नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस. आप फिलोसफिकली सोचिए कितनी बड़ी बात है. Discovery is questioning the answers, not answering the questions. हजारों लोगों ने लाखों लोगों ने देखा सेब गिरता. वो कौन थे जिन्होंने कहा कि सेब क्यों गिरता? इसी डायरेक्शन में क्यों गिरता? कौन थे? न्यूटन. Why? जो why है ना वो बड़ा important है. So discovery is questioning the answers, not answering the questions. Right? Then goal. What is the goal of education? आप बड़े शान से बताइए. आपका सुनना. निशित दुबे. निशित दुबे. निशित कौन था? निशित का चंद्रमा. इतने शान क्या मतलब समझे आप? Goals. What is the goal of education? आप जहाँ जर्नी खत्म हो गई है. जर्नी खत्म हो गई है. राम सत्य नहीं, ये जो हम बात कर रहे थे अभी लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारी जर्नी है तो वो जर्नी का ध्येय जर्नी का एंड गोल इज टू ओपन माइंड्स नॉट क्लोजिंग इश्यूज. खोलो. दिमाग को नॉर्मली क्या होता है कोई वो सिस्टम है. सर मैं आपको दोष नहीं दे सकता.
लेकिन कोई समाज में कोई घटना होती है, कोई उपद्रव होते हैं, तो टीचर्स लोग उसको क्लास में डिस्कस नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू डू सो, राइट। लेकिन यदि आप देखें, वो सोचते हैं कुछ, उनकी अपनी सोच परंपरा वो आपके अंदर में है, लेकिन टीचर्स को, मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा ओपन होने की आवश्यकता है कि हम देखें कि जो जैसे यंग स्टूडेंट्स लेक्चरर कमरेश जैसे हैं, वो सोचते हैं तो डिस्कस करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, राइट। व्हाट इज टेस्ट? सर आप बताइए टेस्ट क्या है? आपका इसमें शरीर सर मेरा हुसैन, हुसैन, हुसैन तो आपका मेरा नाम है सर हुसैन। नाम हुसैन जी। तो असेसमेंट बोलते हैं, उसको टेस्ट है, जो उसने पढ़ा है उसको जो वो भी आप लानी इनकी वाली बात कर रहे थे, इनकी वाली नहीं बात, बोलना चाह रहा था पर मैं लेकिन वो क्या करूँ, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, वो आ जाता है टीचर के, ये हम असेसमेंट जैसा आप बता रहे हैं नहीं, वेरी हु आर यू टू असेस स्टूडेंट्स? कौन है? क्योंकि आपने बीटेक किया इसलिए आप असेस करते हैं स्टूडेंट्स को, जबकि आप अपनी लाइफ में फेल हैं। हम असेस करेंगे स्टूडेंट, क्या असेस करोगे यार? उसका मन नहीं है, वो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन सारा सिस्टम ऐसा है, दिक्कत ये है Determining the birth. जी। Determining the birth. So who determines? My question. Determining the birth up to that extent against which he was expected to perform the So requisite who has skill. created that expectations? तो आपने एक्सपेक्ट किए ना, आपने रेज किए ना एक्सपेक्टेशन। मैं चाहता हूँ कि ये आंसर ये दे। मेरे बेटे ने टीचर ने कहा ABCD सुना जब एडमिशन हुआ, उसने अ आ ई सुना दी, अब वो प्रिंसिपल को नहीं आती थी अ आ ई क ख ग घ ङ। आपको आती कहाँ आती है, कहाँ तक मैं सही होंगी आई नहीं आती, भूल गई आप। तो हमने अपने एक्सपेक्टेशंस को रेज किया ना। गोल जो है एजुकेशन का, जो टेस्ट है, टेस्ट इज बीइंग एंड बिकमिंग, नॉट जस्ट रिमेंबरिंग एंड रिव्यूइंग। अनफॉर्चुनेटली आप रिमेंबर एंड रिव्यू पे डिपेंड करते हैं। टेस्ट इज बीइंग एंड बिकमिंग, ऐसा बने। दिस सोसाइटी हैज मिजरेबली फेल्ड, हमारी इंडियन सोसाइटी मिजरेबली फेल्ड अगेन एंड अगेन। वो चाहे 1992 में बाबरी मस्जिद थी, वो चाहे 1984 में राइट्स थे, या भोपाल प्रेस कांड, जिसमें एकदम मुझे ये लगता है कि आप भोपाल में इतने साल से हैं, आप में से एक जन मुझे बता दें कि वो कौन सा स्टेशन मास्टर था उस दिन जिसने 84 ट्रेनों को वहाँ नहीं रखने दिया। मैं भारत में एक प्रश्न बार बार करता हूँ, मुझे कोई आंसर नहीं है। आई मीन दैट जेंटलमैन, वो उनकी 5 बजे शिफ्ट 5 या 6:30 बजे खत्म होने वाली थी, उन्होंने अपने रिलीवर को कहा तू मत आना, मैं हूँ स्टेशन। एंड 84 ट्रेन से नो ट्रेन विल स्टॉप देगा, चाहे विदिशा में रुको, बीना में रुको, सांची में रुको, यहाँ रुको, लेकिन भोपाल में नहीं। 84,000 जान उस आदमी ने बचाई। क्या किया हमने उस आदमी को? कहाँ है वो, उनकी वाइफ कहाँ है? मैं उसके 6 साल बाद भोपाल आया, अराउंड 1990 में। झोपड़पट्टी में उनकी वाइफ रहती और रोने लगी। उनको लगा कि दिल्ली से कोई आया जो मेरे पति के लिए कोई ग्रांट लेके आया, और मैं रोने लगा। 2 लड़कियाँ कहती, 2 लड़कियाँ विवाहित होने वाली हैं, उनकी दहेज के लिए मेरे पास 1 पैसा नहीं। और मैं उस दिन को जिस दिन याद करता हूँ ना, मेरी आंखों में बड़ा सांस आता। ये हमारी इंडियन सोसाइटी है, बीइंग एंड बिकमिंग, नॉट जस्ट लिविंग। यानी हिंदुस्तान का एक आदमी 1-1 रुपया भी देता ना, 1-1 रुपया स्टेशन मास्टर की बिलो को, वो कहीं का कहीं पहुँचता। वो 2 लड़कियाँ जो बहुत सुंदर अच्छी सुशील कन्याएँ थी, स्टेशन मास्टर के बेटा में झोपड़पट्टी में एक कमरे में फटी हुई धोती के पीछे बैठी। ये हिंदुस्तान है। हम वो जो सर ने कहा ना कि मैं जब इनसे मेरा परिचय हुआ कुरुक्षेत्र में,
तो हम यही बातें करते हैं क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम, ये जिस 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 ग्रुप के हम सदस्य थे या जो हमारे मिड कॉमन थे डॉक्टर, वो ट्राई कर रही है विद्या भारती की वैल्यू सिस्टम डालना है। वैल्यू सिस्टम कैसे आएगा, वो शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कोशिश की है कि वो वैल्यू सिस्टम की हम बात करें। मूल्य बहुत जरूरी है। मैं 25 तारीख को चला, 26 को हम मढ़ई पहुँचे। मढ़ई जी कुचमड़ी के पास। आप विश्वास करेंगे मेरे साथ में थे, ये शायद मुश्किल से 10 शब्द बोले थे, बिकॉज ये नेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे, इसकी साउंड को ले रहे थे। वहीं हमारे रिश्तेदार पूछ रहे थे कि टाइगर दिखा, who wants to see टाइगर यार। हम नेचर की साउंड को तो समझें, पढ़ें। जारवा ट्राइब अंडमान में सुनामी में इसलिए बच गई क्योंकि उन्होंने जमीन में रहना सीखा। एक आदमी की डेथ, मेरे अंडमान में उन दिनों उस वक्त 583 आदमी की डेथ टापू में। जारवा ट्राइब जो जंगलों में रहती थी, सुनामी उन्होंने देखा, लेकिन जमीन की कंपन को सुन के वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा। वो मूल्य हमने खो दी, दिक्कत हमारे साथ ये है। अच्छा, मैंने शायद आपका बहुत ज़्यादा समय दे दिया, आपको कहीं जाना है, चार बजे आप कहीं, है ना? कोई नहीं, पता नहीं। तो मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध, मैं 2-4 चीज़ें लिख के लाया था कि आपसे क्या क्या बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर पाटिल से अनुरोध किया कि आप मुझे किसी भी तरह आमंत्रित करिए, कोई मतलब उसमें धनराशि वगैरह कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, एजुकेटर्स के साथ समझना कि क्या कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध ये है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने बल्कि मुझसे कहा था आधा घंटा आपको लेना है, तो हम कितने बजे आए थे? 3 बजे, 3 से 1 घंटा कैसे लिख गया, मेरे सारे नोट्स जैसे कि वैसे ही, लेकिन सर स्वाध्याय की परंपरा में अच्छा। और ये सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता है। अब मैं इनसे पूछूं कि सिविल इंजीनियर्स का इंडिपेंडेंस में क्या कंट्रीब्यूशन था, मेन कंट्रीब्यूशन नहीं पता है। पंजाब के 12-15 सिविल इंजीनियर्स की एक एसोसिएशन, इंडिपेंडेंस के टाइम फिरोजपुर जो था, माउंट बेटन ने पाकिस्तान की साइड पर दिया। फिरोजपुर से जो नदियाँ उस मार्ग से निकलती हैं, उससे पूरा पंजाब एग्रीकल्चरल फील्ड में मायने रखता है। पिछले 40-50 साल उन सिविल इंजीनियर्स ने रातों रात 15 सिविल इंजीनियर्स ने बात की, नक्शा बनाया, फिरोजपुर गए, मैपिंग की, और सरदार पटेल से आके मिले। सरदार पटेल को कन्विंस किया। सरदार पटेल इमीडिएटली 12 at night गई तो पंडित नेहरू के पास गए। पंडित नेहरू ने कहा अच्छा ठीक है। सुबह 6 बजे का अपॉइंटमेंट लॉर्ड माउंटबेटन से लिया। तो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और 15 सिविल इंजीनियर्स दे वेंट टू माउंटबेटन, और माउंटबेटन को उन्होंने समझाया कि ये जो आपने लाइन खींच दी है, उसमें जो हमको डिवीजन मिला है, उसमें हमारा पानी चला गया पाकिस्तान। माउंटबेटन अंडरस्टूड because he was slightly biased towards Indian. उन्होंने नक्शा चेंज किया, एक दिन देर की नक्शा चेंज किया, फिरोजपुर आया। वो 15 सिविल इंजीनियर्स की मेहनत से हमारा भारत और पंजाब बच सका। ये हिस्ट्री में कहीं नहीं आता, लेकिन सिविल इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन। और ये छोटी छोटी बातें शायद हम हिस्ट्री में न पढ़ाई जाती हैं, न जानी जाती हैं, न कुछ होता है। सिविल इंजीनियर्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पंजाब को बचाया। मैं आपसे विदा लेता हूँ सर, थोड़ा सा, और मैं डॉक्टर पारितोष जी से कुछ कहूँगा कि ये IVRI में कैसे, व्हाट ट्रेनिंग दे गिव टू टीचर्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस अबाउट टीचर ट्रेनिंग। ये किसको